अमेरिका ईरान इसराइल जंग में कूद पड़ा। ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर बमबारी कर दी। फर्दो, नतंज और इस्फहान जौहरी साइट्स को निशाना बनाया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी साइट हमले में B-2 बमबार तैयारों ने 6 बंकर बस्टर बम गिराए। दीगर ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने फर्दो, नतंज और इस्फहान जौहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक कर। व्हाइट हाउस में मुख्तसर स्पीच की डोनाल्ड ट्रंप के कुछ देर पहले, और साथ ही ये भी बताया कि सुबह 8 बजे अमेरिकन टाइम के मुताबिक सुबह 8 बजे पीट हेग्सेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज के इस हमले के हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफ करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपने मुख्तसर खिताब में कहा गया कि ईरान की जौहरी तंसीबात ख़त्म कर दी गई हैं। अमन ना कायम करने की सूरत में मुस्तकबिल के हमले बहुत ज़्यादा शदीद हो सकते हैं। अमेरिका का मकसद ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को ख़त्म करना है। ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान पुरअमन नहीं रहा तो आइंदा हमले मजीद सख्त हो सकते हैं। ईरान पर हमले के नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम किया है। अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि बहुत से अहदाफ अभी भी बाकी हैं। आज रात के अहदाफ सबसे मुश्किल थे। उन्होंने कहा कि अमन ना हुआ तो दुरुस्तगी के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। अमेरिकी फौज हुकाम इतवार को पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमेरिकी फौजी हुकाम इतवार को पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज के इस हमले की तमाम तर तफसीलात के हवाले से बात करेंगे। इस मुख्तसर खिताब में अमेरिकी सदर ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon.
And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. अमरीकी सदर की ईरान को रद्द अमल की सूरत में मजीद मौलिक हमलों की धमकी। ट्रंप ने कहा कि अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिहा होगा। बहुत से अहदाफ रह गए, अमन ना हुआ तो दुरुस्ती के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। ट्रंप ने कहा ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। अमरीका का मकसद ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत को खत्म करना था। अमरीका ने ईरान की तंसीबात पर हमलों के लिए GBU-57 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 पाउंड वजनी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर में 6,000 पाउंड धमाका खेज मवाद होता है। ये बम इंतहाई महफूज तंसीबात तक पहुंचने और उन्हें तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के सूबे क़ुम में पहाड़ों के नीचे वाक़े फर्दो ईरान का यूरेनियम अफजूदगी का अहम तरीन मरकज है। नतन्स में भी यूरेनियम अफजूदगी का मरकज निशाना बनाया गया। इस्फहान के करीब अमरीकी बमबारी का हदफ तंसीबात के बारे में ख्याल किया जाता है कि यहाँ अफजूदा यूरेनियम जखीरा की गई है। ईरान के एटमी तवानाई इदारे का कहना है अमरीकी हमलों के बाद ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। तीनों तंसीबात के करीब आबादी को खतरात नहीं। एटमी इदारे का जौहरी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। जौहरी तंसीबात पर हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन और NPT की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा अमरीकी हमले कई रोज से जारी इसराइली हमलों का तसलसल है। IAEA इन पर खामोश और मुमकिना तौर पर शरीके जुर्म है। ईरानी ओहदेदार का कहना है अमरीकी हमले से पहले जौहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था। निशाना बनाए गए साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो इखराज का बायस बने। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि अमन ताकत से आ सकता है। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले इसराइल से मुकम्मल राबते के साथ किए गए। सदर ट्रंप ने ऑपरेशन मुकम्मल होने के फौरी बाद उन्हें कॉल की। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा। मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मीर साहब, नेतन्याहू कहते हैं कि ताकत से अमन कायम किया जा रहा है अमेरिका के साथ मिलकर। क्या लगता है ताकत से अमन आ सकता है? देखिए, ताकत से तो अमन कभी भी कायम नहीं होता। और ये जो ट्रंप साहब ने एक्शन लिया है, ये एक्शन देखकर मुझे 9/11 के बाद जो अमेरिका ने हमला किया था अफगानिस्तान पर, और उसके बाद जो अमेरिकी सदर थे जॉर्ज बुश, उन्होंने जो खिताब किया था वो अगर आप निकालें उसको दोबारा देखें तो आपको बड़ी सिमिलैरिटी नजर आएगी। इसी तरीके से जिस तरह ट्रंप साहब ने अपनी फतह का ऐलान किया है और नेतन्याहू जो है वो उसने उनका शुक्रिया अदा किया, तो उस वक्त भी तकरीबन यही सूरत हाल थी। और अमेरिका ने कहा हमने जंग जीत लिया है, लेकिन उसके बाद फिर अमेरिका जो है वो कई सालों के बाद अफगानिस्तान से काफी रुसवा होकर निकला। तो अगर आप हिस्ट्री देखें तो अमेरिका की जो फौजी ताकत है उसमें कोई शक नहीं कि उनके पास फौजी ताकत तो है, लेकिन इस फौजी ताकत के बावजूद ना वो वियतनाम की जंग जीत सके, उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया, वहां पे भी वो नहीं जीत सके, फिर उन्होंने इराक पर हमला किया, वहां पे नहीं जीत सके। तो ये कहने को तो एक फौजी ताकत है, लेकिन फौजी ताकत उसी वक्त एक अल्टीमेट विक्ट्री में तब्दील होती है जब आपके साथ सियासी ताकत भी हो। तो ट्रंप साहब के सूरत हाल ये है कि उनके पास तो अपनी जो उनकी कांग्रेस है उसके अरकान उनके इस हमले को सपोर्ट नहीं कर रहे, और बहुत से अरकान का ये कहना है कि ट्रंप का ये हमला जो है ये इलीगल है, क्योंकि अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की हमले से पहले कांग्रेस की तायीद जरूरी है, जो कि ट्रंप साहब के पास नहीं थी। तो मेरी जो राय है वो ये है कि ट्रंप साहब ने ये हमला ईरान पर नहीं किया बल्कि अपने आप पे कर दिया है, और इसके असरात जो हैं वो अब आप देखेंगे कि ट्रंप साहब को न सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि अमेरिका के बाहर भी उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नो डाउट कि नेतन्याहू बहुत खुश है और उसने उनका शुक्रिया भी अदा कर दिया है, लेकिन ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने
इस हमले के बाद अपने बहुत से जो दोस्त हैं उनको खो दिया है, और ये हमला जो है ये अल्टीमेटली ना तो अमेरिका के मुफाद में होगा और ना ही ट्रंप के अपने मुफाद में है। ठीक है, हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अपने तज़िये से आगाह कर रहे थे। तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और अभी तक ईरान की जानिब से मौजूदा सूरत हाल पर कोई हुकूमती रद्दअमल सामने नहीं आया। अलबत्ता ईरान की एटमी तवानाई एजेंसी ने 3 तनसीबात पर अमरीकी हमले की तस्दीक की है, वाज़ेह किया है कि पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखा जाएगा। और दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुख्तसर जो खिताब किया गया है उसमें यही कहा गया है कि ईरान की जो एटमी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ईरान पर अमरीकी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है, ये तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। उन्होंने कहा कि आम शहरियों, खिते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है, वाहिद उम्मीद अमन है, तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है।